Hello, my dear friends. Welcome back to my channel English by Nidhi 22. So, first of all of you subscribe my channel and hit the bell button. So today we will cover the next letter L from A Glossary of Literary Terms by M.H. Ibrahim. So, our first term is light verse. What is light verse? Light verse term apply to a great variety of poems that use an ordinary speaking voice and a relaxed manner to treat their subjects gaily or playful or wittily or with good nature satire. Talked about serious matter but in conventional tone. मीन्स कि हम सीरियस मैटर के बारे में बात करते हैं बट एक कन्वर्सेशन जैसे हम डेली हमारी नॉर्मल लाइफ में जिस टाइप के हम वर्ड्स या फिर टोन यूज़ करते हैं दैट टाइप ऑफ वर्ड्स वी विल यूज़ इन दैट. So in this is poetry written mainly for entertainment, humor, wit and pleasure. So what is light verse? Light verse is a poetry written in simple, playful और amusing style. मेन फीचर्स क्या होते हैं इसके? ह्यूमर, एंटरटेन करना, सिंपल रिदम एंड सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करना, ऑफन यूज़ करता है विट, वर्ड प्ले, आयरनी, सटायर फॉर समथिंग एंड डिस्क्राइब करता है जो हमारी एवरीडे लाइफ है, एवरीडे लाइफ एंड जो हमारे कॉमन एक्सपीरियंसेस हैं वो. हम एग्जांपल ले सकते हैं अलेक्जेंडर पॉप द रेप ऑफ द लॉ, थॉमस लपिकॉक द वॉर सॉन्ग ऑफ डायनस वायर, एडवर्ड लियर द आउल एंड द पुशी कैट. These are the famous example of light verse. So our next term is limerick. What is limerick? What is limerick? Limerick is a 5-line short poem. What is the rhyme scheme of limerick? A A B B A. We will keep remember that A A B B A. So limerick is usually comic, playful and sometimes nonsensical. Edward Lear is the poet most strongly associated with the modern limerick. His A Book of Nonsense, published in 1846, helped popularize the form. इसका एग्जाम्पल क्या है? देयर वॉज एन ओल्ड मैन विद अ बियर्ड. हम इसमें क्या एक उसका इंट्रो दे रहे हैं. देयर वॉज अ ओल्ड मैन विद अ बियर्ड, बियर्ड के साथ. दैट विल भी क्या हम कॉमिक वे में अनाउंस कर रहे हैं जो उसका डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं ओल्ड मैन का. सो लिमरिक है. हम एग्जाम्पल एक और ले सकते हैं इसमें. देयर वंस वॉज अ मैन फ्रॉम पेरू हु ड्रीम्ड ही वॉज ईटिंग हिज शू. He woke with the fright in the middle of the night to find that his dream had come true. That will be this limerick line which often ends with a surprising or a funny line. Funny line. This will be to mock something in very easy way. That will be known as limerick. So next is linguistic in literary terms. Linguistic. It is a systematic study of elements of language and the principles governing their combinations and organizations. Linguistic होता है एक criticism. Linguistic in literary criticism we have to study. स्टडी करते हैं हम जब एक लिटरेरी टेक्स्ट को क्लोजली उसकी लैंग्वेज पे कैसे जो लैंग्वेज क्रिएट करती है मीनिंग एंड कैसे इफेक्ट करती है. So examine how language is structured, how it produces meaning and how people use it and how it changes. So that is known as linguistic. Linguistic कहते हैं study of the language. What is philology? Philology होता है historical study of language and the text. जब हम historical from one age to the another age, different ages has been crossed and we study the language or the text in that will be known as philology. It's the study of language through historical text, especially to understand the origin, development, meaning and transmissions of language and literature. In philology we can see Ferdinand de Saussure, the one of the important linguistic, Swiss linguistic. उन्होंने दो टाइप के हमें बताए हैं, डायक्रॉनिक स्टडीज एंड साइक्रोनिक स्टडी. डायक्रॉनिक स्टडीज एंड साइक्रोनिक स्टडीज. So these are means when we
जब द शशोर है वो एक लिंग्विस्टिक है, वो अपने एक यूनिवर्सिटी में जो अपने लेक्चर्स दे रहे थे तो उनके स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये कंबाइन किए थे। तो डायक्रॉनिक स्टडी होती है स्टडी चेंज ओवर टाइम, जब हम ओवर द टाइम डिफरेंट टाइम पीरियड्स में हम एक ही टॉपिक को बार बार अलग अलग चीज़ों से पढ़ते हैं। एंड साइक्रोनिक्स होता है स्टडीज़ लैंग्वेज एट वन सिंगल पॉइंट, जब हम एक सिंगल पॉइंट पे पढ़ते हैं। एंड जो हमारे सशोर हैं उन्होंने साइक्रोनिक स्टडी को इम्पोर्टेंस दी थी कि हम जो एक सिंगल टाइम पे पढ़ सकते हैं उससे क्या, जब हम एक सिंगल एज के अकॉर्डिंग जो वर्ड्स है, जो लैंग्वेज में जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस हुए उन्हें हम इजीली पहचान सकते हैं। सो नेक्स्ट इज इट इज़ बोथ डायक्रॉनिक एंड साइक्रोनिक। मैंने आप सभी को बता दिया डायक्रॉनिक होता है ओवर द टाइम पीरियड एंड साइक्रोनिक होता है ओवर अ सिंगल टाइम ऑफ पीरियड। फोनोलॉजी साउंड, फोन से हम रिमेंबर कर सकते हैं साउंड, दैट विल बी फोनो। फोनोलॉजी डील्स विद द साउंड सिस्टम ऑफ अ लैंग्वेज। मॉर्फोलॉजी वर्ड्स फॉर्मेट आफ्टर द साउंड, हम रिमेंबर कर सकते हैं फोनोलॉजी एंड मॉर्फोलॉजी। फोन साउंड, मॉर्फोलॉजी वर्ड फॉर्मेशन, स्टडीज द स्ट्रक्चर एंड द फॉर्मेशन ऑफ द वर्ड। सो नेक्स्ट इज लेक्सिकल लेवल, चॉइस ऑफ वर्ड्स, कि हम एक सेंटेंस है उसमें किस टाइप के जो वर्ड्स हैं उन्हें सेलेक्ट करेंगे, that will be known as lexical level. Next is syntax structure sentence. Syntax is the arrangement of words into the sentence. Lexical जो हमने words choice करे हैं उन words को syntax में हम उनके arrangement करेंगे in different how the subject verb combination, pronoun subject verb object, हम उसे एक arrangement में डालेंगे, that will be known as syntax. After that there will become प्रैग्मेटिक। सिमेंटिक डील्स विद द मीनिंग, जो हमारा जो लिटरल एंड कॉन्सेप्चुअल मीनिंग है, जो हमारे वर्ड्स हैं उनका लिटरल होता है जो हम पढ़ते हैं, दैट विल बी जो एक हिडन टाइप ऑफ मीनिंग होता है। कंसेप्चुअल जो हम कॉन्सेप्ट बेसिस पे करते हैं। एंड प्रैग्मेटिस होता है मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट, जब हम मीनिंग करते हैं किसी एक चीज़ के कॉन्टेक्स्ट में। प्रैग्मेटिक स्टडी हाउ मीनिंग डिपेंड अपॉन द कॉन्टेक्स्ट एंड द सिचुएशन, जब हम उसे हमारी जो रियलिटी है, जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ है, इसमें हम अप्लाई करते हैं। हम एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे द नाइट इज़ डार्क, द नाइट इज़ डार्क। फोनोलॉजी के अकॉर्डिंग हम इसे कह सकते हैं कैसे जो साउंड है क्रिएट करिए हमारा पर्टिकुलर मोड। मॉर्फोलॉजी में स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स लाइक जैसे जो डार्क है ये इसका स्ट्रक्चर है। लेक्सिकल में हम देख सकते हैं क्यों जो डार्क है अरेंज किया गया इन पर्टिकुलर वे ऑफ सेंटेंस में। सिमेंटिक वट इज़ द मीनिंग द सेंटेंस वॉन्ट टू कन्वे। एंड प्रैग्मेटिस होती किस कॉन्टेक्स्ट में जो स्पीकर है जो हमारा सेंटेंस है ये बोला है। सो दिस इज़ ऑल नोन एज सिंटैक्सिस। हमारी जो यूनिट 6 है इन हमारे UGC नेट सिलेबस देर विल बी अ कंप्लीट यूनिट ऑफ लिंग्विस्टिक। सो वहाँ पे हम इन सभी टर्म्स को इन डीपली स्टडी करेंगे। एंड दो मेजर लिंग्विस्टिक है जैसे नॉम चॉम्स्की है, फर्डिनेंद द शशोर एंड मैनी मोर, हम उनको डीपली डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप सो यू लाइक माई वीडियो, सो सब्सक्राइब माई चैनल।